उसकी भी वृद्धि होती है। ये दोनों साथ में चलते हैं। तो कई शास्त्रों के अंदर प्रज्ञा शक्ति के लिए सद्बुद्धि का तो ये मंगलाचरण है। तो इसके अंदर हमारी क्या प्रार्थना है कि व्यवहार सद्बुद्धि हो और निश्चय में अभिवृद्धि हो। तो ये दोनों साथ होते हैं, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार वो बेसमेंट है और निश्चय से हमारा वो काम पूरा करना है। तो यहां कौन सा कार्य पूर्ण करना है? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं, यह जो राइट बिलीफ हमें प्राप्त हुई है, तो वो राइट बिलीफ वो 5 आज्ञा की समझ है उधर। क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक व्यवहार में सद्बुद्धि वो क्रियाकारी नहीं होती है। व्यवहार में तो सद्बुद्धि नहीं होती है, होती है सही। और ये जो दोनों लाइनें हैं कि व्यवहार में सद्बुद्धि सद्बुद्धि हो, अभिवृद्धि, तो ये 5 आज्ञा की तरफ ही ले जा रही है मेरे को। हाँ हाँ, पर ये व्यवहार में भी बहुत कचाश है। हाँ है। व्यवहार की कचास के परिणाम में हम निश्चय की जो अभिवृद्धि होनी चाहिए, अभिवृद्धि का मतलब क्या है? अनुभव के स्टेजिस हम चढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। तो ये किससे होगा? तो कि व्यवहार में भी सद्बुद्धि, हम उसको प्रज्ञा शक्ति भी कह सकते हैं। हाँ, प्रज्ञा शक्ति भी कह सकते हैं। कांतियानंद जी, हाँ जी, આપણે વ્યવહારમાં સદબુદ્ધિ હોય તો જ ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ થાય ને. हाँ, પણ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એ આપણી પોતાની આંતરિક સમજ છે. હવે સમજ ક્યારે આવશે? તો કે આ સદબુદ્ધિનો જે આખો વિવેક એમ હા, એ હશે તો જ. હશે તો જ કે આ વસ્તુ મારા હિતમાં છે એમ. બરોબર. પણ મન એને જલ્દી સ્વીकारवा नहीं दे. નહીં દે, બરોબર છે. मन जो है ना, वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है. એટલે એટલું સહેલું નહીં બની શકે. સહેલું છે, પણ प्रज्ञा शक्ति जहां जहां हमें जागृत करती है, तब ये बहुत इजी हो जाता है. બરોબર. वहां स्वयं क्रियाकारी है. स्वयं क्रियाकारी का मतलब क्या? ये ज्ञान कैसा है? तो कि स्वयं क्रियाकारी है. स्वयं क्रियाकारी का मतलब क्या है? कि प्रत्येक संयोग में, प्रत्येक व्यवहार में प्रज्ञा शक्ति तो हमें भीतर से जागृत करती ही है. ચેતવે છે. આપણે આપણી ભાષામાં શું કહીએ છીએ? ચેતવણી આપે છે. ચેતવણી આપે છે. પણ મન એનો જે ફોર્સ છે એ એની બાજુ આપણને ખેંચી જાય છે. હજુ એમ બરોબર. લગામ આપણા હાથમાં છે તો પણ એમ જબરો એમનો પ્રભાવ બહુ કહેવાય. બહુ છે, બહુ છે.
અને પ્રજ્ઞા શક્તિ પણ છોડે એવી નથી. પ્રજ્ઞા શક્તિને નિશ્ચયમાં અભિવૃદ્ધિ તરફ એને લઈ જવું છે. એને આખું એ વસ્તુ રહેલી છે. બરોબર. અને આ આખી જે મથામણ છે એ દરેકની એના પોતાના મનના પ્રમાણે દરેકને એના લેવલે આ અંદર એક પ્રકારનું આપણે તપ કહીએ તો તપ, અને એનું સેપરેશન આખી વસ્તુ જે કહીએ કે ભાઈ આ જે કંઈ પણ મથામણ થઈ રહી છે એ આખો એક રિલેટિવ ભાગ છે. અને હું કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. એ આખી વસ્તુ આજે આખું જે સેપરેશન છે જી જી. એ તપનો ભાગ છે આપણા માટે. અચ્છા, હા, ઠીક, બરોબર. તપ એટલે શું? તો કે આ જે કંઈ પણ સંયોગ આવ્યો છે એ જેવો આવ્યો છે એવો, જ્યારે આવ્યો છે એવો, એ આ રાવલ સાહેબનો છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું એમ. તો જ એ સંભાવે નિકાલ થતો. પણ મન એ એનું ધાર્યું કરાવવા માટે એ પણ ધમ પછાડા કર્યા વગર રહેશે નહીં. કારણ કે એ ડિસ્ચાર્જ થતી વસ્તુ છે. શું છે? એ પરિણામ આપીને જ જશે. હા, મન डिस्चार्ज हो गई हो गई तो मगर हमारा फिर सद्बुद्धि का क्राइटेरिया क्या है? हाँ, सद्बुद्धि का क्राइटेरिया यही है कि निश्चय में अभिवृद्धि होती है तो वो सद्बुद्धि है, और जो हमारे हित का भी हमें नहीं बताती है तो वो सद्बुद्धि नहीं है. सद्बुद्धि नहीं है. બરોબર. ये मंगलाचरण में तो सब बातें आ जाती है. इतनी बढ़िया बात है. જબરજસ્ત જબરજસ્ત. ये 4 लाइन के अंदर ये हो जाता है. હવે આ કંજાનંદજી આ 3 દિવસનો જે આ શિબિર 3 દિવસની, હવે એ શિબિરમાં તો અહો અહો આપણને બધા બહુ મહાત્માઓને થાય. બહુ અહો અહો, અને એટલું બધું આજ્ઞામાં આમાં તેમાં જગદીશભાઈને રહેવાય છે, ઘણું રહેવાયું. અને એવું લાગ્યું, એવું પાછું મનમાં કચવાટ કયો રહ્યા કરે છે, અહીંથી પાછું જવાનું છે અને પાછું લાઇટ બિલ ભરવાનું છે જઈને એવું. કારણ કે જઈએ એટલે તરત જ લાઇટ બિલ, પાણી બિલ, વેરો બેરો કે લ્યો આ ભરતા હો. એટલે મન છે ને. એટલે એ પાછું જરાક એમ ખચવાટ લાગે. હવે આપને મારે એટલું પૂછવાનું કે હવે આ કાયમનું રે એ માટે કંઈક આપ જરાક એના વિશે થોડુંક. નહીં, આ કાયમનું રે એટલા માટે જ આ આજ્ઞા છે. અને વ્યવસ્થિત શક્તિ આ ફાઇલ નંબર 1 ને ગમે તેવા સંજોગોમાં મૂકે, જી, એમાં આપણું કશું ચાલવાનું નથી. નથી ચાલવાનું. બરોબર છે. કારણ કે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે એનો એક એક ટાઈમિંગ છે. એનો બરોબર છે. શું છે? ટાઈમિંગ છે આનો. ટાઈમિંગ છે. અને એ વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણને લઈ જશે. ઓહો. આપણે એક વ્યવહારની ભાષામાં બોલાય કે આપણે અહીંયા આવ્યા, હવે આ શિબિર પૂરી થશે એટલે જવાનું, પણ અંદર એક શુદ્ધાત્માનો અનુભવ એ આખી વસ્તુ શું છે? તો કે જે કંઈ પણ ફાઇલો છે એનો તમે સંભાવે નિકાલ લાવો. બસ. આહા, બરોબર છે. પછી અહીંયા હોઈએ કે ઘરે હોઈએ, કારણ કે એટલે કહે છે ને, આપણને જેવા સંયોગો ભેગા થશે એવા પ્રયોગો થશે. થવાના છે, થવાના છે. બિલકુલ. ડગલે ને પગલે થાય છે. હા. ડગલે ને પગલે. તમને નહીં, અમને આવે કે હવે આ 3 દિવસ શિબિર પૂરી થઈ જી, જી. એટલે અમારે મન બતાડે ને હાજી હાજી હાજી. કે હવે શું, હવે 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 કઈ ફાઇલ એમ, હવે ક્યાં જવાનું, બરોબર. એવું બતાડે એમ. પણ છતાં એનું જે વ્યવસ્થિત છે, હા, બરોબર છે. એ વ્યવસ્થિત જે ફાઇલો સાથે આપણા ઋણાનુબંધ છે હા, ત્યાં લઈ જશે. લઈ જશે. બરોબર. વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણને મુક્ત કરાવવા માંગે છે. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? જી જી જી. અને આજ્ઞા શું કહે છે?
તો કે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ થશે તો મુક્ત થશો, બરોબર છે. તો મુક્ત થશો. આપણે અને એ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એ જ નિશ્ચયમાં અભિવૃદ્ધિ છે. રાઈટ રાઈટ એક્ઝેક્ટલી. હવે આ ઘણી જગ્યાએ આમ આ લઈ જાય કે આને ભૂત વળગ્યું છે અને આ પલિત વળગ્યું છે એવું બધું કરીને મંદિર જ્યાં એવું બધું ક્રિયાઓ કરતા હોય ત્યાં લઈ જાય. ભૂત એટલા બધા ચાલાક હોય કે એ બહાર જતા રહે એ ટાઈમે જ્યાં મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાનો હોય ને તો એ બહાર બેહે, નીકળી જાય એ ટાઈમે. પછી મંદિરમાં કશું હોય નહીં, ના હોય. એટલે મંદિરમાં હાજા થઈ જાય. એટલે આ અહીંયા એવું જ છે કંત્યાનંદજી, આ મંદિરમાં અહીંથી જઈશું તો પાછા એ બધું ભૂત બધી વળગવાનું. ફાઇલો રાહ જુએ છે. અને અત્યારથી તમારે શરૂ પણ થઈ જાય. હવે કારણ કે આ આખો જે શિબિરનો આખો જે પ્રયોગ છે આ એ હવે આખો એ વિયોગ તરફ જઈ રહ્યો છે. જી 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 કરાયો? જી. હવે જેવો આ એક વિયોગ તરફ જઈ રહ્યો છે અને એ વિયોગ પણ પાછો સંયોગ તરફ જાય જાય છે છે. જાય છે. એ ચોટવાનું જ સંયોગ બધું. તરફ જાય છે. ચોટવાનું. એટલે સંભાવે નિકાલ કર્યા વગર છૂટકો જ નથી. બસ. અને જય એ જ સચ્ચિદાનંદ. એ જ ખરો સત્સંગ છે આપણા માટે. આપણા માટે સત્સંગ એ જ છે ખરો. જય સચ્ચિદાનંદ. અમને આપજો. माइक में बोलो ना, सबको सुनाई दे. जय सच्चिदानंद. तो एक ऊर्ध्वगामी शक्ति बोलते हैं, आत्मा का वीर्य ऊर्ध्वगमन जो एक वीर्य, एक स्थूल वीर्य उसकी बात है कि अंदर सूक्ष्म वीर्य की बात है? सूक्ष्म वीर्य की बात है. स्थूल वीर्य की तो नहीं ना. तो वो ऊर्ध्वगमन अपने कषाय जितने इतने कम होते जाते उस हिसाब से चलता है कि जागृत शुद्धात्मा के लक्ष्य रखे तब भी वो बढ़ता है. किस प्रकार से वो वृद्धि कर रहा है? यहाँ जैसे जैसे फाइलों का संभाव से निपटारा होता जाता है तो वो सूक्ष्मता से उसका ऊर्ध्वगमन अपने आप होता रहता है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो ऊर्ध्वगामी ही है. हाँ. पर ये जो शक्ति है ये फिजिकल है कि मैकेनिकल है? ये जो ऊर्ध्वगम ये पूरा जो फंक्शन है वो प्रज्ञा शक्ति का है. नहीं जो कहते हैं ना हाँ. से मूलाधार से ऊपर को हाँ जाती हाँ शक्ति, हाँ. वो मगर वो जो बातें हैं वो क्रमिक की अपेक्षा से बताई गई है कि मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र की जो प्रोसेस है वो एक हठ प्रयोग की प्रोसेस है. समझे? मगर यहां क्या होता है, ज्ञानी की कृपा जब प्राप्त होती है इसका परिणाम क्या है कि प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई. समझे? ये जितने भी चक्र की जो भी शक्तियां हैं वो पौद्गलिक शक्ति है. कैसी शक्ति है? पौद्गलिक. वो पौद्गलिक शक्ति है. जी. तो अपना ऊर्ध्वगमन स्वभाव जो है वो बट नेचुरल ढंग से पुरुषार्थ के माध्यम से बनता जाता है. हाँ, बनता जा रहा है. और उसका जितना जितना प्रकाश बढ़ेगा ज्ञाता दृष्टा का उतना उतना चेहरे में भी वो रिफ्लेक्ट होता जाएगा नूर के हाँ रूप में. हाँ. बराबर. और जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, वो अलग चीज वस्तु है. एक स्थूल ब्रह्मचर्य है जी. और एक
ज्ञाता दृष्टा रूपी वितरागों का जो चारित्र है, जी तो ये दोनों को हमें समझना है। यहां जो है निश्चय की जो अभिवृद्धि है वो ज्ञाता दृष्टा के रूप में चारित्र है। बस टूल भी तो हेल्पफुल है ना। स्थूल भी हेल्पफुल है, अनुमोदनीय है, मगर वो भी रिलेटिव है। पर ये जैसे कोई माल लेकर ही नहीं आया, ब्रह्मचर्य का उदय लेकर नहीं आया। जैसे कई लोग होते हैं जो अनहक का विषय भोगते हैं और अनहक का विषय भोगते हुए भी बाद में ज्ञान ले लेते हैं और उसके बाद भी वो अनहक भोगते रहे, तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों कहता हूं मैं? इस बात को मैं अनुमोदन नहीं दे रहा हूं, मगर जिसके साथ जो भी जैसा भी हिसाब है उसको संभाव से निपटारा करना पड़ेगा। अगर वो बाद में जागृत होकर निपटारा कर लेता, प्रतिक्रमण कर लेता, तो छूट सकता है। इसलिए मैं क्या बताऊं, जैसे हम आपता पुत्र लोग हैं, ठीक है। अब मन जो है वो मन के अंदर पुरानी जो बिलीफ है कि स्त्री में सुख है या पुद्गल में सुख है, ठीक उसी तरह स्त्री को भी रॉन्ग बिलीफ है कि पुरुष में सुख है। अब जैसा संयोग आता है तो वो जो ग्रंथि पड़ी हुई है वो ग्रंथि संयोग के आधार पर उसका फूटना तो होगा ही, समझे। मगर प्रतिक्रमण जो है मन अब्रह्मचर्य का बताएगा, क्योंकि वो चार्ज हुआ है। अब ज्ञान के आधार पर ब्रह्मचर्य का निश्चय वो आज हुआ है। तो दादा भगवान ने क्या कहा, जैसे अब्रह्मचर्य का विचार शुरू होता है तुरंत सूट ऑन साइड वो प्रतिक्रमण भी शुरू होता है। तो वो प्रतिक्रमण जो किया, मतलब ये पहले का हमारा जो ओपिनियन है आज उसके साथ हम संगत नहीं है, आज उसके साथ हम एग्री नहीं है। तो ये स्थूल ब्रह्मचर्य हुआ। और फाइलों का संभाव से निकाल हाँ का जो तो वो पति पत्नी का व्यवहार है। फाइलों का जो संभाव से निकाल का बात आता है, फाइल 1 यानी फाइल नंबर 1, और ये मेरे लिए तो फाइल नंबर 1 का संभाव से निकाल तो यही है ना कि मैं अपनी फाइल को देखूं और जानूं। हाँ, और बुद्धि विचार वर्तन जो भी बने उसको देखना और बिना दखल के देखना, वही मेरा निकाल बोला जाएगा। हाँ वही फाइल निकाल 1 का। बोला जाएगा। यानी हमारा तो 8 घंटे फ्री बैठे होते हैं, तो एक फ्री में भी मन बुद्धि चित्त तो बराबर चले। कोई किसी चिंतन में चल रहा है, कोई स्वाध्याय में चल रहा है, या कोई श्रावक ने कुछ बात का तो उसके ऊपर चल रहा है, किसी की प्रॉब्लम को लेके चल रहा है, तो वो जो चल रहा है उसको देखना और जानना, ये भी संभाव से निकाल है। हाँ ये भी संभाव से निकाले। और मगर आपका ये सब जो व्यवहार है उसमें अगर शुद्धात्मा का लक्ष्य चुक जाते हैं तो वो अब्रह्मचर्य हो जाएगा। वो रियल भाषा का ब्रह्म होगा। हाँ रियल भाषा का। क्योंकि दादा भगवान ने क्या डेफिनेशन दिया कि जिसको जो भी याद आता है उसके लिए वो विषय है। एक इतनी बड़ी डेफिनेशन इस चीज का हमारा अनुभव है।
हमारा अनुभव रहता है, जैसे सत्संग का कोई प्रयोग होता है तो मेरे को दादाजी की आज्ञा है कि आप सत्संग दो तो त्रिमंत्र बोल के देने का। तो हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, आपको मालूम होगा, हाँ, मालूम है। लुधियाना में। तो उस समय हमने त्रिमंत्र बुलवाया था। तो उसमें जैन भी थे, नॉन जैन भी थे, सरदार भी थे और नेता लोग भी थे, सब तरह के थे। तो उसमें एक ऐसा जैन भाई था जो दिगंबरी था, दिगंबर समाज से रिलेटेड था, वो भी किसी के थ्रू आया था। हाँ, तो उसने जब त्रिमंत्र सुना तो उसके अंदर इतना नेगेटिव हो गया कि उसने व्हाट्सएप पे मेरा वहाँ का फोटो खींचकर, अपना फोन से फोटो खींचकर फेसबुक में डाल दिया अपने अकाउंट में कि ये महाराज साहब अपने नमोकार मंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। और मुझे तो पता नहीं था, मैं तो फेसबुक देखता नहीं था। तो मुझे किसी ने कहा कि आपने क्या उधर त्रिमंत्र बुलवाया था, तो ऐसे ऐसे आपको कमेंट आ रहे हैं कि इस मुनि को निकलवा दो। इस मुनि ने, ये मुनि क्या किस आधार पे ये हमारे नमोकार मंत्र के साथ वासुदेव या ओम नमः शिवाय जोड़ता है। यानी अलग अलग तरह के कमेंट हमारे साथ उसमें लिखे जा रहे थे। तो मेरे संसारी फैमिली वालों का फोन आया कि नदों हिमाचल से, हम तो पंजाब में लुधियाना बैठे हुए, और वो हिमाचल से फोन आया कि ऐसे ऐसे आप ये बोल रहे हो तो आपको ये सब कोई एक्शन ना आ जाए। तो मैंने कहा, मैंने कौन सा गलत बात परोसी है? मैंने तो कोई किसी को ये नहीं कहा कि तुम जाके करते डिस्को डांस करो एंड पार्टी करो। मैंने तो जो सहज भाव में है, फिर मैंने उसको फोन किया जिसने डाला। मैंने किसने डाला, तो फिर मैंने उस व्यक्ति को फोन करके कहा कि तेरे को नमोकार मंत्र नु अर्थ मालूम छे? अभिप्राय नहीं बदला, मतलब उसके प्रति नेगेटिव अभिप्राय मेरा खड़ा नहीं हुआ। बराबर है। तो और एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने इतना 200-300 लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स आए और सिद्ध मुनि को आए ये जानने में आया, मुझे आए ये जानने को नहीं आया। ये मेरा अनुभव। तो जब मैंने उससे गोठवन की नॉर्मल बात किया कि आप वासुदेव कृष्ण किसे बोलते हैं और अरिहंत किसे बोलते हैं, तुम्हें कितना ज्ञान है? तो जब मेरे से उससे 2 मिनट बात हुआ तो उसने बाद में तुरंत अपना जो पोस्ट डाला था क्लियर किया, संभाव से निकाल भी हुआ और अपना ओपिनियन खड़ा नहीं हुआ। तो उसका भी जो कहते नेगेटिव होकर गया था वो वापस पॉजिटिव होके क्लियर हो गया। क्लियर हो जाता है। बराबर है। तो और ये ब्रह्मचर्य है रियल भाषा का। हाँ, हमें भी ऐसा होता है, जैसा आपको हुआ है ना, ऐसा हमें भी ऐसा अनुभव होता है। मगर और ये बात थी जहां तक एक बात समझना है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति विरोधी नहीं है। वो सबसे पहले हमें यह समझना है, जहां तक वास्तविकता क्या है वो उसकी समझ में नहीं आता है। क्योंकि जहां मतार्थ है ना, मतार्थ मतलब हम जैन धर्म के और तीर्थंकरों की ही भक्ति करनी चाहिए, समझे? तो दूसरे मंत्र हम क्यों बोले? एक ऐसी मत वाले जो होते हैं वो मतांध होते हैं और कोई भी बात को यथार्थ स्वरूप से समझने के बगैर ऐसा विवाद खड़ा कर देते हैं। मगर हमारा अगर एक भी स्पंदन उसके प्रति नहीं है, समझे? और त्रिमंत्र का उसका जो भावार्थ ही यही है कि संसार विघ्न निवारक त्रिमंत्र। तो ये बात जो है 2020 16 जनवरी की थी। बराबर है। और उसमें 18 तारीख को जैसे ये मालूम मुझे पड़ा, मुझे तो हंसी आई उल्टा कि अरे क्या मतलब वो बंदे ने बिना सोचे जाना ऐसा कहते कमेंट उसने लोगों को भी भले, हाँ हमारा ये था कि कोई चिकना कर्म था वो केवल फेसबुक में खत्म हो गया और अपने को अपमान नु भय
उस समय से निकलना शुरू हो गया। आज तक अब कोई अपमान भी कोई करता है ना, तो अपने को ऐसा ख्याल नहीं आता कि मेरा अपमान इधर ना होना चाहिए। और कभी कभी तो सिद्ध मुनि खुद सोचता है कि जानबूझ के कोई ऐसा कार्य करके जाए कि जिससे कोई अपमान करे, और फिर भी नहीं मिलता है। क्योंकि दादा बोलते थे कि 100 अपमान आएंगे तब नीलकंठ कहलाएंगे। ये बात मेरे अपने जीवन में सिद्ध मुनि ने लागू करी है। और आपने आपसे मैंने पूछा था ना सुबह, मान गया तो किस क्या परिणाम बात, तो अपमान का भय ना लगे। तो अब अपमान नु भय नहीं लगता। हाँ, अपमान आ जाता है तो उसको सिद्ध मुनि नु आया और फाइल आई, ये हाजिर रहता है हमारे को। बराबर है। यानी हाजिर करना नहीं पड़ता है, गोठवनी करनी नहीं पड़ती है, गोठवनी लानी नहीं पड़ती है कि ये फाइल है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से सिद्ध मुनि हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूँ, गोठवनी नहीं करनी पड़ती है, वर्तन में वर्तता है, ऐसा रहता है। बराबर है। तो ये ब्रह्मचर्य वर्ते ऐसा, यानी ये सहज, इसको सहज ब्रह्मचर्य बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं, इसी दशा को, इसी दशा को। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा अनुभव हमारा है, आपको बताता हूं। ऐसा त्रिमंत्र का है। 1994 में यूके मैनचेस्टर के अंदर पर्युषण पर्व चल रहा था। तो सभी का अपने अपने हिसाब से जो रूटीन होता है, वो रूटीन के हिसाब से चलता है। तो हमने वहाँ सिमंदर स्वामी भगवान की आरती की, और वो जैन कम्युनिटी हॉल था। तो ऐसा ही सब लोगों का हुआ कि हम तो आदिनाथ भगवान की आरती करते हैं हमेशा, सालों से, और यहाँ सिमंदर स्वामी की आरती क्यों हुई, क्यों की? तो ऐसा सभी लोगों को प्रश्न उठता है। तो तब ऐसे ही हम लोगों ने उनको बताया कि आप नवकार मंत्र के अंदर नमो अरिहंताणम पहले क्यों नमस्कार करते हो? तब उन लोगों को ये बात समझ में आई कि हम नवकार मंत्र में तो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो पहली आरती उनकी करने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? समझे? तो ये सिमंदर स्वामी परमात्मा की आरती वहां हुई। संयोग ऐसा आया, यूके की गवर्नमेंट ने बहुत से पाउंड ये कम्युनिटी हॉल का जो रिनोवेशन करते हैं ना, उसके लिए उन्हें मिला, और उन लोगों ने वो हॉल के अंदर सिमंदर स्वामी परमात्मा की प्रतिमा रखी। तो हमें निर्भय होकर कहीं भी जाते हैं और आवश्यकता है तो ये त्रिमंत्र बिना किसी भी हिचकिचाहट से उसको बोलना है। और ये मंत्र वैसे तो आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर उन्होंने दिए हैं ये, मगर इस समय को देखकर दादा भगवान ने देखा कि आजकल धर्म के अंदर ही इतने मतार्थ, इतने आग्रह,
हो गए हैं उनकी वजह से वो आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और श्रीमद् राजचंद्र का भी वचन है, मतभेद ना બંધન ને કારણે जीव तत्व ने पामी सकतो नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब देखकर दादा भगवान ने ये त्रिमंत्र फिर हमारे कल्याण के लिए, हमारी ऐसी एक निष्पक्षपाती दृष्टि, समझ, मनन हो जाए, इसके लिए ये त्रिमंत्र रखा है। और दादा भगवान ने तो यहां तक कहा, जो श्री कृष्ण भगवान को मानता नहीं है वो सच्चा जैन ही नहीं है। कृष्ण भगवान का हमारे मंदिर मार्गी 45 आगम मानते हैं, जो मंदिर डेरा को फॉलो करते हैं। हमारे स्थानक वर्ष 32 आगम मानते हैं। तो उसमें भी ये जो भारतीय आ रहा है 20 से 25 आगम, 20 से 25 आगमों में कृष्ण भगवान और उनके परिवार का ही जिक्र है। हाँ। जिसमें जब पर्युषण पर्व होते हैं तो अंतगढ़ सूत्र की वांछना होती है। अंतगढ़ सूत्र के 99 जो मोक्ष में गए हैं उनका जिक्र होता है। तो उसमें 4 दिन कृष्ण भगवान के जीवन से लेकर उनकी द्वारिका नगरी के विनाश तक का जिक्र होता है और उनके गुणों की चर्चा होती है। तो इसमें अपेक्षा क्या है लोगों की, जो मेरी समझ में आता है और जो हमारा अनुभव रहा है समाज में विचर के, वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान को हम पेश करें तो वो उसमें भी जैन होना चाहिए, वैष्णव लोगों का कृष्ण नहीं होना चाहिए। वो उनका मत है। हाँ। रामचंद्र जी, हम जय श्री राम बोलते हैं ना, तो हमारे लिए तो नमो सिद्धानंग है। वो कहता है जय श्री राम हिंदुओं का चला गया, हमको तो राम वो चाहिए जो हमारे वीतरागों के राम हो। मतलब एक शब्द के कारण से इतना मतभेद है। हाँ। मतलब जय श्री बोल दिया तो समझो हिंदुओं के, वो हिंदू ने बोल दिया, और केवल नमो सिद्ध अरहम रामचंद्राय नमः बोल दिया तो उसमें जैनियों का आ गया। तो ये सब मतभेद केवल बिलीफ के आधार पे खड़े हैं, और उसमें भी डाले किसने? हम जैसे पंडितों ने। और पंडित क्या है? बुद्धि। बराबर है। इसीलिए पंडितों को पंडिताई में, बुद्धि की कसरत में इतना आनंद आता है, उन्हें आत्मज्ञान से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा पक्ष कैसे मजबूत हो, हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़े, और हमारे फॉलोअर्स दूसरे मत में न चले जाए, उसके लिए ही सब झंझट रहती है। हाँ, बहुत देर लगेगी, क्योंकि इसलिए दादा ने ये स्पेशल शब्द का प्रयोग किया, बुद्धि की कसरत। देखिए, देहनी कसरत तो आपने बधाने खबर छे, पण बुद्धिनी कसरत एम પોતાનું શ્રેષ્ઠ બતાવવા માટે બીજાનું નિમ્ન બતાવવું પડે, એ કેટલી બધી નિમ્ન સમજ કહેવાય હે? હા, એક કહેવાય એમ। એટલે દાદા ભગવાન એટલે સુધી કહ્યું, તમે રામ ભગવાનની ભક્તિ જેટલી કરવી હોય એટલી કરો, પણ તમે રાવણને વગોવીને એની ભક્તિ કરવાની કોઈ જરૂર નથી है। इसके लिए जब बुद्धि बात आए तो मेरे को एक महाराज साहब कहते कि सिद्ध मुनि तू व्याख्यानकार बन जा, 1 नंबर का, दुनिया तेरे पीछे भागेगी क्या? और तू समझाने के मामले में बहुत सूक्ष्म ढंग से समझाता है, पर तू व्याख्यानकार बन जा। मैंने कहा महाराज साहब
अनादिकाल से व्याख्या देते देते थक गया, अभी तक के लोगों को व्याख्या समझ नहीं आई। आपके आपके समझाने से समझ आ गई है तो आप बने रहो ना। मुझे तो जो मेरे सामने आएगा तो उसको मैं बात कर दूंगा। बराबर है। मुझे व्याख्या नहीं देनी है, मुझे मेरा अनुभव देने का है, जो मुझे मिला है और जिससे मिला मुझे उसका बात करके निकल जाने का है। और व्याख्या देने के लिए अपना टाइम निकालूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, तो उतने में तो मेरा मोक्ष अटक जाएगा और जो मिला हुआ है वो भी अटक जाएगा। उस ऐसा बोल के मैंने महाराज साहब को कहा कि आप ऐसी कृपा करो कि ये शब्द ऐसा निकले कि मोक्ष के काम लग जाए दूसरे को। और ऐसा व्याख्यान ना दूं कि घंटा घंटा व्याख्यान चले पर किसी को एक अक्षर भी उस सामने वाले के हित अंदर प्रवेश ना करे। तो मैंने ये बात बोली तो कहते सिद्ध मुनि तो पक्का मोक्ष में जाएगा। कविराज ने बताया है उनके पद के अंदर, उपदेशक ज्या मान भिखारी व्यर्थ जैसे व्याख्यानो। क्या कहा? उपदेशक ज्या मान भिखारी। जैसे वो उन्होंने आपको बताया ना कि आप व्याख्यान करो तो लोग आपके पीछे आ जाएंगे, समझे? तो मान की अपेक्षा हुई ना। आपके पीछे लोगों को बुलाकर आपको क्या करना है, क्या करना है आपको? मगर ऐसा ही है, इसलिए लिखना पड़ा उपदेशक मान भिखारी। उपदेश के पीछे उसकी मान की भीख है कि लोग मुझे सुने, लोग मुझे माने और मैं कितना अच्छा व्याख्यान कर रहा हूं वो उसके ही गर्व रस में रहे तो वो व्याख्यान भी व्यर्थ जाता है। नहीं, अकेला मान का भिखारी नहीं होता है। आज के समय में जो मेरा भी अनुभव है जानने का है, मान के साथ साथ लोभ का भी भिखारी होता है। तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसको होता है कि मेरे 4 चेले बन जाएंगे तो मैं उसको किसी को 1 लाख की कहूंगा तो वो 1 लाख रुपए मेरे इधर चरणों में डाल के चला जाएगा। बराबर है। वो इस कलयुग में तो बद्दू कषाय एक उपदेशक में मिल जाए जो कहते हैं शराबी में भी ना मिले। बराबर है। માઇક આપ એમનું. આપણે વ્યક્તિગત કોઈની વાત નથી કરતા, આપણો જે પ્રશ્ન હોય એની વાત કરો. હા એમાં એ હમણાં જે આ વાત ચાલી રહી છે ને એના અનુસંધાનમાં કહું છું. એ પણ એમ કે નિષ્પક્ષપાતી જેવા એ પણ જ્યારે શરૂઆત કરે છે પ્રવચનની ત્યારે એ ગુરુમંત્ર બોલે છે, ચક્ષુરમ મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અને એક ગીતાનો શ્લોક પણ બોલે છે, ફોર યોર નોલેજ. તેથી નિષ્પક્ષપાતી છે એવું માનવાનું કારણ નથી. એ આખી બહુ વસ્તુ જુદી છે. આ નિષ્પક્ષપાતી એ આખી સમજના પરિણામે છે. કોઈના વર્તનથી તમે એમ ના કહી શકો કે આ નિષ્પક્ષપાતી છે. બરોબર. એ કહ્યું ને એને, જી જી. જે વ્યાખ્યાન પાછળ એને માનની ભીખ છે, વૈષ્ણવો ક્યારે સાંભળશે? એમને ક્યારે સાંભળશે? આ જોશે તારે સાંભળશે ને. ચોક્કસ. એ ગીતાનો શ્લોક બોલશે તો સાંભળશે. બરોબર છે. એટલે વેપારીઓ બહુ હોશિયાર હોય છે. ગણતરી બધી. ગ્રાહક શું ખરીદી કરવા આવ્યો છે અને એનું બજેટ શું છે બધું જાણતા હોય. એટલે કહેવું પડ્યું સાહેબ, ધર્મમાં વેપાર. શું કહેવું પડ્યું? ધર્મમાં વેપાર હોવો જોઈએ. આ તો જો સમાજ વેપારમાં ધર્મ હોવો જોઈએ. વેપારમાં ધર્મ હોવો હું જોઈએ. તમને એક પ્રસંગ કહું દાદા ભગવાનનો, જી જી. જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે શું એમની આંતરિક પરિણીતિ છે. જી જી.
એક આવા મોટા હોલની અંદર પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ રાખવામાં આવેલો હાજી. અને નીરુબેનને કહ્યું બરાબર. આ બધા લોકો આવ્યા છે તો સૌથી પહેલા હું તમારો પરિચય આપું કે બધાને. દાદાએ કહ્યું. ના, નીરુબેને કહ્યું. ઓહો. શું કહ્યું? તમારો પરિચય આપું હું. હા, એટલે હું પહેલા પ્રવચન આપું એમ. દાદા ભગવાન એટલે કોણ, કોણ? જ્ઞાની પુરુષ એટલે કોણ, દાદા ભગવાન કોને કહેવાય છે, એ બધું હું પહેલા આ લોકોને સમજાવું એમ. બરાબર. અને પછી તમે પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ કરો એમ. અચ્છા. હં. દાદા ભગવાને શું કહ્યું? જી. આપણે અહીં વેપાર કરવા નથી આયા કે. બોલો. શું કહ્યું? આપણે અહીં વેપાર કરવા નથી આવ્યા. પ્રચાર ક્યાં હોય? વેપાર કરવો હોય ત્યાં. જ્યાં વેપાર કરવો હોય ત્યાં એમ. અને ખરેખર પરિચય આપનાર બરોબર. એ દાદા ભગવાનનો પરિચય નથી આપતા, એ પોતાનો પરિચય કરાવે છે. ઓહો. એટલે આખું જે વિઝન છે ને, આ સજીવન મૂર્તિનું આટલું બધું મહત્તમ કેમ છે? જી જી. તો કે આપણે આપણી મતિથી, આપણે આપણા વ્યવહારથી જી જી. આપણે કરવા જઈએ છીએ, હં. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષનું વિઝન કંઈક આખું જુદું જ હોય છે એમ. એટલે કહ્યું ને કે લૌકિક દ્રષ્ટિથી બિલકુલ ઊંધી દ્રષ્ટિ એ જ્ઞાનીઓની હોય એમ. જ્ઞાનીઓની હોય એમ. બરોબર. વેપારીઓ છટકવાય ના દે. હો, એ વેપાર કરે. અટકવા દેતા હોય, છટકે. હવે એમાં એક અટકવા જ સવારમાં ના દે. કાંચનાનંદજી, એક હસવાની વાત છે કે સવારના પોરમાં દુકાન ખોલી એક દુકાનદારે, અને એક ગ્રાહક ગયો એમની પાસે. તો ગ્રાહકે કહ્યું કે ભાઈ ઉંદર પકડવાનું પાંજરું છે? તો કે હા છે. કે બતાવો. એટલે બતાવ્યું એને. તો કે શું ભાવ છે? તો કે 15 રૂપિયા. ઓહો હો હો, 15 રૂપિયા. કે હું તો ફલાણાની ઓળખાણથી આવ્યો છું. તો કે 5 ઓછા આપજો. એમ કરતાં કરતાં એને ઓછા કરાવ્યા કાંચનાનંદજીને, કે છેલ્લે 3 રૂપિયા સુધી આવ્યા. કે 3 રૂપિયામાં લઈ જતું. પછી એને પાંજરું ઉપાડ્યું અને ચારે બાજુ જોયું અને દુકાનદારને પૂછ્યું કે આમાંથી ઉંદર છટકી તો નહીં જાય ને? તો કે ઉંદરને છટકી જાય હોય છટકી જાય, પણ તને અત્યારે છટકવા નથી દેવો, તું લઈ જા. એટલે વેપાર પાકો કરે વેપારીઓ. એટલે આપણે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આ કરેક્ટ છે એમ માનીને ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દેવું. એના વાદ વિવાદમાં આપણે પડવાની જરૂર નથી. અને વિતરાગોનો મોટામાં મોટો સિદ્ધાંત કુદરતી રીતે અંદર એવો સમજાયો છે જી જી. કે આ જગતની અંદર દરેક વ્યક્તિ એના દ્રષ્ટિ બિંદુથી સાચી છે. ઠરાવશે છે. બસ આ વિતરાગનો સિદ્ધાંત છે. અને તો જ સ્યાદવાદનો સિદ્ધાંત જળવાય. જળવાય. નહીં તો એ ટીકામાં ને નિંદામાં જો પડે તો એ પોતાનું જ અહિત થાય છે. થાય છે. બરોબર છે. પોતાનું અહિત થાય છે. વાદ વિવાદ છે ત્યાં ધર્મ હોય જ નહીં. નથી ત્યાં દાદા જ નહીં. ત્યાં દાદા જ નહીં. દાદા જ નહીં. અમને પણ કહેલું એમણે, કોઈ પણ જગ્યાએ સત્સંગ માટે જવાનો યોગ આવે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે જો વાદ વિવાદ થાય, બરોબર. વાદ વિવાદ એટલે શું? આપણે સાચા ખોટામાં પડ્યા, પડ્યા. બરોબર છે. અને સાચું એ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી છે અને ખોટું એ પણ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી છે. એ કેવી રીતે? તો બંને રિલેટિવ જ છે ને. ઓહો. બંને વસ્તુ રિલેટિવ છે. હં.
અપેક્ષા એ છે ને, અપેક્ષા એ છે. હા હા. આજે એક સમાજનું સત્ય જે છે એ સત્ય બીજા સમાજ મારા માટે સત્ય નથી. નથી. એ નથી એમ અપેક્ષા એ છે. અપેક્ષા એ છે. બરોબર. એટલે કહેવું પડ્યું જ્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છૂટી જાય છે છે. ત્યારે વિતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય ઓળખાય છે. છે. એટલે કે જ્યાં વાદ વિવાદ થયા ત્યાં પછી દાદા હોતા નથી. નથી યંત્રાય પડી ગયો. ઉતરાય પડી ગયો. અને આ જ ભૂલો અમારી થતી પહેલા, કારણ કે શરૂઆતમાં તો એવા બધા 18-19 વર્ષની ઉંમર આમ કરી નાખો ને તેમ કરી નાખો ને એને એવો સમજાઈ દઉં ને દાદા પાસે આવીને જ્ઞાન લઈ જ જાય ને જે મારા મારીને ઝપાઝપી જાય. તારે આ એક વિઝન એમને આપ્યું એમ કે આપણી એ વાત એ સ્વીકારે બરોબર. ન સ્વીકારે, માને ન માને, સાંભળે ના સાંભળે, જી જી. પણ કોઈ જીવને દુઃખ થવું જોઈએ નહીં. નહીં. બસ આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ છે એ કોઈને દુઃખ આપવા માટે નથી જતા. ખોટા નહીં ક્યાં ખોટો કહેવાનું કે છે. જરૂર જ નથી. એની દ્રષ્ટિએ સાચો જ છે. સાચો જ છે. સાચો જ છે. એટલે જે પહેલી આજ્ઞા જે છે ને રિલેટિવ, જી જી જી. અને ઘણા બધા સંપ્રદાયના સાધુઓ સાથે પણ મળવાનું થાય, મોટા મોટા પ્રચારકો સાથે પણ મળવાનું થાય, હાજી. બધું થાય ને બધી વાતો થાય એમ. હા હા. પણ આ જે દરેક વ્યક્તિ એના દ્રષ્ટિબિંદુથી સાચી છે તો ક્યારેક કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે આપણને મતભેદ નહીં પડે. બોલો. અને જ્યાં કોઈની સાથે મતભેદ નથી ત્યાં આપણું કલ્યાણ છે જ. છે જ, છે જ. છે જ એમ. એટલે આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને એમણે તો એટલે સુધી કહ્યું એમ હા હા. કે જો એક પણ વ્યક્તિને દુઃખ થયું એમ હા હા. તો એ અમને દુઃખ થયા બરાબર છે કે ઓહો. કેટલું ત્યાં- સાચવવું પડે. ત્યાં જઈને માફી માગી આય કે શું કે, ત્યાં જઈને માફી માંગ્યા. અને તારાથી ના મંગાય તો મારે જવું પડશે કે. એ બોલો. હવે જેને માફી માંગવાનું કહ્યું છે એ તો એ સાચો છે એવી બિલીફમાં હોય જ પાછો. હા એ હોય જ એમ. એટલે આ બહુ મોટી જવાબદારી વાળી વસ્તુ છે. આ જય સચિદાનંદ. બહુ મોટી જવાબદારી વસ્તુ છે. आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए. हाँ प्रश्न पूछिए. सत्संग सिद्धम मुनि जी जो व्यवहार में उदय के अधीन होता है उसमें क्या क्या जागृति रखे जिससे स्यादवाद वाणी का भी विकास हो और जो तीर्थंकरों का आश्रय दादा भगवान का आश्रय एग्जैक्टली सामने वाले को प्राप्त हो उसके लिए हाँ। क्या क्या जागृति रखे और क्या क्या बचाव रखे. सबसे बड़ी जागृति आपके लिए क्या है कि आप व्यवहार दृष्टि से सिद्धम मुनि है और एक जैन धर्म के आप साधु हैं. इसको आप जागृति में रखने की जरूरत है सबसे पहले. और दूसरी बात क्या है कि जब कोई भी श्रावक या कोई भी आपके पास जब आता है तो वो व्यक्ति की समझ में आप एक जैन मुनि है उस दृष्टि से वो आपके साथ बात करेगा. करेगा कि नहीं करेगा? उन्हें कुछ मालूम नहीं है. तो ये सबसे बड़ा आपका ये व्यवहार है. आपका व्यवहार है ये. तो ही निश्चय रहेगा. नहीं तो जैसे ऐसे बहुत से साधुओं को भी अपने जीवन के अंदर पजल
आए हैं ज्ञान लेने के बाद, समझे? क्योंकि वास्तविकता क्या है वो उनकी समझ में आ गया, मगर आपका जो व्यवहार है व्याख्यान देने का, वो आपका व्यवहार है, तो वो जैन धर्म के हिसाब से ही उस फाइल का संभाव से निपटारा करना है। समझे आप? ये बहुत जागृति जरूरत है। ये जैन धर्म व्यवहार दृष्टि जैन धर्म के हिसाब से बोले तो थोड़ा क्लियर करें। जैन धर्म के हिसाब से मतलब ये ज्ञान की, ये विज्ञान की ऐसे जाहर में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यवहार में उन लोगों को क्या काम लगेगा आज, वो व्याख्यान में अगर आता है तो सबको काम आएगा। समझे आप? व्यवहार इसे कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं समझाता हूं। पर्युषण के दिन थे। बोटाद संप्रदाय के नवीन चंद्र मुनि महाराज एक बहुत बड़े हुए। तो ऐसा हॉल के अंदर उनका व्याख्यान चल रहा था और उन्होंने सब दादा भगवान के बारे में जाना था। तो संयोगवशात वो व्याख्यान के हॉल में ही दादा भगवान का आना हुआ। तो वो आचार्य भगवान अपना जो आसन है, समझे, पाठ है, वहां से वो खड़े हो गए और सबके सामने, पर्युषण के दिनों में तो कितने लोग होते हैं, उन्होंने दंडवत नमस्कार किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। कितनी सरलता होती है, समझे, तब ये व्यवहार होता है। मगर दादा भगवान ने उन्हें क्या कहा, महाराज साहब आप अपनी पाट पर बैठ जाइए, ये व्यवहार में अच्छा नहीं है, मगर आपने जो विनय किया वो विनय आपको मोक्ष में ले जाएगा। तो सबसे पहली आज्ञा क्या है? व्यवहार दृष्टि से मैं सिद्धम मुनि हूं, तो आपका भी संग होगा, आपके भी संगपति लोग होंगे। कुछ भी है, सत्संग है, मंदिर है, तो उसका भी ट्रस्ट होगा। तो वो इस हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना है, संभाव से निपटारा करना है। और जब वो आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे तब उनको ख्याल आएगा कि ये मुनि के अंदर जरूर कोई समझ है। समझे? और वो समझ, वो आपको कुछ पूछते हैं तब आप निर्भय होकर बताइए, निर्भय होकर बताइए। इतनी जागृति रखनी है। और ये मुनि भी बहुत सरल है, नहीं तो ऐसे सत्संग में आकर बैठना ये कोई ऐसी मौसी बात नहीं है। ये यही ज्ञान का प्रताप है, ज्ञान का प्रभाव है कि यही वितराग की बात है। समझ में आ गया? फिर भी व्यवहार से ही रहना है। वो आपके लिए भी कल्याणकारी है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है। एक विकास चंद्र मुनि थे, तो उन्होंने ज्ञान लेने की भावना जगाई कि हम दादा भगवान को आमंत्रित करते हैं, उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं। मैं नहीं, मेरे और भी शिष्य जो है वो सब करीब 18-20 लोग थे, समझे। तो सब
जैनों का विरोध हुआ, होगा ही, कि आप साधु होकर, आप आचार्य होकर एक संसारी से ज्ञान ले रहे हो, ये तो संसारी है। फिर वो महाराज साहब ने, आचार्य भगवंत ने सबको समझाया कि ये वितराग का ज्ञान है, ये भेद विज्ञान है। अगर भेद विज्ञान, ये ज्ञान वितराग का मेरे में एज इट इज समझ में आएगा तो इसमें आप लोगों को ही लाभ होने वाला है। इसमें क्या कमी है, क्या बुराई है, हमें बताओ। तब उन लोगों ने स्वीकार किया। तो व्यवहार ये बहुत बड़ी बात है, और महात्माओं के लिए भी व्यवहार दृष्टि में जितनी अपनी जागृति रही तो वो निश्चय में अभिवृद्धि ही है, निश्चय में अभिवृद्धि है।